Group of human beings and stars out here. We've got Sri Ashish Shilar, Honorable Member of the Legislative Assembly from Bandra, former Education Minister, Governor of Maharashtra, and we've got Isha Kopikar, and we will get so many more stars out to meet in this. Today is the launch of a star-studded movie. The trailer and okay, good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to this wonderful evening, to the launch of the musical and theatrical trailer of Lovely Lokata. We from Bandra, former Education Minister, Governor of Maharashtra, Senior BJP functionary, Governor from Maharashtra, and yes, he is a man who is dynamic. Amit Kumar ji, kindly welcome Sri Ashish Shilar on stage with the bouquet. Ashish, could we please have you on stage? Exactly what has happened in Maharashtra, it is something similar that we made 1 year before. अभी देखना है कि कॉपीराइट का केस किस पर डालना है. And it is very incidental that the situation happened here and the movie is about to release. And I wish to thank so many. Alisa, look here. Alisa, look here. Thank you, sir. किसका हाथ है? सपना जी सामने. सपना जी इधर. सपना जी यहाँ पे नहीं देख रहे हो उधर. और रुक जा पीछे उनके सोलो पोस्टर के साथ. लड़की को तो मत परेशान करो, हो जाओ थोड़ा. सपना जी दोनों भाई मोबाइल थोड़ा सा फ्रेम में आ रहा है पीछे में. सपना जी सपना जी सेंटर. सपना जी मैम तो क्या मैम? सपना जी इधर देखिए. चलिए, थैंक यू. हाँ जी, हो गया. उनको नहीं हुआ रुको. सांजी सोलो है. सांजी सोलो. न्यू हुआ. लोग नाइस लोग. विजय जी लोग सेंटर. विजय जी यहाँ पे लोग. विजय जी सेंटर लोग. इनको और करीब से लाइट मारो. पूरा फेस जला दिया यार. इनको हिमांशु जी यहाँ पे. हिमांशु भाई सेंटर. हिमांशु भाई अरे इधर देखा नहीं हिमांशु भाई. टिंकू भाई पीछे से लाइट दो यार. हाँ बस I love you लोग. सेंटर आंटी को देखिए. Thank you so much. Thank you. सर एक सर आप अच्छे तो हो. क्या बात? अच्छा हाँ बिल्कुल सर. आप उधर जाओ.
more moments over and over and over again. The first time I've seen all of us trailer over and over and over again. We can't wait for the movie to come out. We are only going to wait for one person to reach out here. As a huge round of applause. Javed Akhtar, a warm welcome to you, sir. Okay. My friend from media, give us 5 minutes. Members of the media, just 5 minutes will give you ample opportunities for photographs. सपना जी ऐसा कहते हैं विद इन स्टेट में तो गवर्नमेंट गिरने वाली है. So thank you सपना जी for such a super awesome song. आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे about the ठीक है, राम राम नमस्ते. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है काफ़ी लोगों को देख रही हूँ जिनको देख देख के बड़ी हुई बहुत लंबे से बनी आप लोगों को बीच में मेरा गाना लॉन्च बहुत थैंक यू अमर सर. और हम बोलते हैं कि हमारे हरियाणा के हम यहाँ के आदमी नहीं हैं, हम यहाँ के हैं. तो हम यहाँ के हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा. तो थैंक यू. और सभी कलाकारों के लिए है कि कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता, कि कलाकार किसी बसर का गुलाम नहीं होता, और ये यूं ही बदनाम महफिल में सरेआम नहीं होता, और ये बिक जाए तो प्यार में बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास इसका दाम नहीं होता. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच. Okay, ladies and gentlemen, if you have 4 different songs, so we're going to show you all the 4 songs. Let's have the music. Ji, please come on the stage. Poonam ji, please come on the stage. And Raza ji, please come on the stage. Please give a big hand because you have been a really source of inspiration for this movie, all of them. And I'm so glad and delighted that they all have come today to do the honors here. So, of course, before I continue, behind every successful man, there is a woman. I please tell my wife, Bhavini, please come here on the stage. तो बुलाने का फायदा है कि मैं लेट तक रह सकता हूँ यहाँ पे. Because she has been never complaining during the shoot also. We have been really coming late at 12 o'clock at night, 2 o'clock at night. Even during COVID, she has been complaining कि COVID में भी आप दिखते नहीं हो. ऐसे तो really thank the full family, especially her, because she has been really liberal enough to give a lot of time. And this project would never been happening if she would not have been there. Thank you so much, Bhavin. Thank you so much. Yes. So first, I would like to call Raj Premi ji. Raj, please come on the stage. I request Javed ji to do the honors of giving him.
I welcome Abhijit ji. I request you to please do the honors of giving this bouquet and souvenir memento to Shri Raj Premi ji. Raj, please, at the hands of Javed ji. Javed ji, please, you have to give to Mr. Raj Premi. Yes. Thank you so much. I request Chakidar, please, at the hands of Chakidar ji. Thank you so much. Sanjay Seth ji, please come on the stage. I request Poonam ji to do the honors. Director of this movie. Director Mr. Abhay Nihalani. Please give a big welcome to Abhay. Abhay, please. Amruta ji, please do the honors. Our director of the movie, the young and dynamic Mr. Abhay Nihalani. Hands of Amruta ji. Mr. Pradeep Bhatt. Yes. At the hands of Mr. Sanjeev Jaiswal. Yes, please. Our head of our art director Jayan Deshmukh ji. Okay, now the heart of the movie, Isha Kopikar ji, please come on the stage. At the hands of Javed Akhtar ji, please. Ali Asgar, the main art as a journalist. Please give a big hand to Ali Asgar. We welcome Krishna Abhishek. Hi, Krishna. Welcome to Krishna Abhishek. The London Pub Song. And the Queen Sapna Chaudhary ji, please come on the stage. बाबा इधर बाबा 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 लुक I welcome. Here we established the lawyer in London. अभी द मैन बिहाइंड द शो लव यू लोकतंत्र, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन अमृता जी से एंड जावेद जी से, दोनों मिलके अमित जी को दे बुके और अवार्ड प्लीज। अमित मेहता जी, एक एक्चुअली 2 अवार्ड मिलना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का और एक एक्टर का, है कि नहीं? आइए भाई।
प्रतिभा जी आपकी आइए आइए, मुझे नहीं हाय हाय सर जैकी प्रतिभा को जैकी दादा के हाथ से दिलाते हैं अवार्ड। प्रतिभा ब्यूटीफुल सिंगर विद अ ब्यूटीफुल वॉइस। शहजाद अमृत और मैं है ना रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी फिल्म से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, जिन्होंने हमारी फिल्म में गाना भी गाया है। अमृता फडणवीस जी, तो जावेद जी के हाथ से मैं इनको फैसिलिटेट करना चाहूंगा। रोमांटिक सॉन्ग संग बाय अमृता जी। Please give a big hand, everyone, please. ये ललित जी की मेहरबानी थी एक्चुअली। अमृता जी ने बहुत खूबसूरत गाना गाया और हमने कोशिश की उसी खूबसूरती से उसको पिक्चराइज किया जाए। जो भी हम अमीर जी बीच में आइए, सुनिए बीच में आप। सर आइए। हाँ मैं आओ आज थोड़ा ग्लास थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा पोस्टर रिलीज के लिए आगे से हट जाएं। अमित जी आप बीच में आ जाइए। अमित जी आप बीच में आ जाइए। अपनी टीम तो देखिए, पहला पोस्टर खुला भी सपना जी का ही। ये आगे आइए। चलिए Done. Finally. Zurich Media. Began. चलिए, थैंक यू वेरी मच। पोस्टर फाइनली लॉन्च हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ईशा जी, थैंक यू मोहन जी, जावेद जी, थैंक यू। ट्रेलर देखा, फिल्म के 4 गाने देखे और मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को बड़े स्टार्स की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े स्टार बड़े नाम फिल्म चलाने की गारंटी नहीं होते और ये बात बार साबित हुई है। फिल्म चलती है, कंटेंट चलती है, टेकिंग चलती है, ट्रीटमेंट चलता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ मुझे आज इस फिल्म में दिखाई दी हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत फास्ट पेस्ड है, बड़े पंची लाइंस हैं और जो नए एक्टर्स हैं बहुत फ्रेश हैं। तो मैं समझता हूं कि इस फिल्म को बड़े स्टार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिल्म के जो स्टार्स हैं वो उसकी कहानी है, उसकी टेकिंग है, म्यूज़िक है, कलर्स हैं और फास्ट पेस है। सो
मैं अपने दिल की गहराइयों से अमित मेहता, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और दुआ देता हूं कि ये फिल्म जो है उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। और फिर मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, ये फिल्म ऐसी है, इसे किसी भी बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने बड़ा काम किया है। वो एडिटिंग हो, वो टेकिंग हो, वो म्यूजिक हो। सो आई थिंक एवरीबडी हैज स्कोर्ड with distinction. All the very best. लोकतंत्र जो है ये एक पॉलिटिकल सटायर है और आजकल की राजनीति पे आधारित है। हमने जब 2 साल पहले कोविड में ये शूट किया था तो हमें पता नहीं था कि इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू डिपिक्ट जो आजकल हमारे राजनीति में चल रहा है। बहुत ही हिलेरियस मैड कॉमेडी है और माय रोल इज़ ऑफ अ पॉलिटिशियन, तो अलग रोल है। मैंने ऐसा किरदार पहले कभी निभाया नहीं है एंड आई एन्जॉयड प्लेइंग दिस रोल। आई एन्जॉयड वर्किंग विद ज्यूरिक मीडिया। अमित जी वॉज अ वेरी ग्रेसफुल प्रोड्यूसर, कभी पेमेंट के लिए तंग नहीं किया उन्होंने एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग विद द एंटायर कास्ट। थैंक यू। आजकल हमारी ऑडियंस बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अलग अलग कंटेंट के लिए रेडी है। दे एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स, स्टोरीज। मुझे लगता है आजकल जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिक्स राजनीति में चल रहा है, उसको लेके हमने थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी ऑफ कोर्स लेके जो स्टोरी बनाई है वो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी। बिकॉज इट इज़ जो इसकी स्टोरी लाइन है वो सीरियस है, लेकिन जो इसकी स्क्रीन प्ले है, नरेटिव है, ये बहुत ही फ़नी है, बहुत ज़्यादा ही मतलब कॉमेडी है इसमें। एंड मेरा जो रोल है वो सीरियस है, बट इट्स सिचुएशनल कॉमेडी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे कॉमेडीज़ वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कूल है हम, जो मैंने किया था बहुत साल पहले, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। मेरा रोल उसमें बहुत सीरियस था, बट इट वाज अ सिचुएशनल कॉमेडी। लाइकवाइज ये फिल्म भी मुझे लगता है विल बी वेरी वार्मली एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस एंड हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड इट शुड डू वेल। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारी जो कंट्री है ये सबसे बड़ी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी। और ये जो पिक्चर बनी है इसका सब्जेक्ट इतना खूबसूरत है, जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको कि ये तो अरे यही तो हुआ है। और म्यूज़िकली वोवन पिक्चर है, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं इसमें। संजय छेल हैं जिन्होंने गाने भी लिखे हैं, स्क्रीन पे डायलॉग लिखे इसके, और म्यूज़िक बहुत ही अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द सॉन्ग्स। और म्यूज़िक मेरे दोनों बेटों ने मुझे असिस्ट किया है इसमें, म्यूज़िक बनाने में, म्यूज़िक अरेंज करने में और पूरा एग्जीक्यूट करने में। तो बहुत अच्छी पिक्चर है, आप ज़रूर देखिएगा इसको, और इसको देखेंगे तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और इट्स अ बिग थिएटर रिलीज़, और इसका जो म्यूज़िक है जी ने ख़रीदा है इसका,
और जी ने जब पूरा गाना सुना इसके पूरे तो दे रियली लव्ड इट। वो भी ऑन बोर्ड आ गए और वो भी यहाँ पे साथ में हमारे। और आज म्यूज़िक का रिलीज़ फंक्शन है, ट्रेलर का रिलीज़ फंक्शन है। ये म्यूज़िक ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है आज। ओके, थैंक यू। जी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और गाना सही में बहुत धमाकेदार था। मैंने सुन के ही हाँ की थी गाना करने के लिए, तो बड़ा मज़ा आया। पूरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी राज सर का और अमित सर का। नहीं, वो तो लोगों की सोच है, वो तो एक टैगलाइन है, एक चीज़ें जैसे हम कान को आँख और आँख को कान कभी नहीं बोल सकते, तो ये तो खाली शब्द है। आप खुद में क्या हो वो बहुत मायने रखता है। मैं खुद क्या हूँ, अंदर से क्या हूँ, तो मैं सपना चौधरी हूँ, मैं आइटम गर्ल नहीं हूँ। जी असुरक्षा का माहौल देखिए पहले भी था, आज भी है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है वो तो कानून का काम है, कानून अपने हाथ से ही अपने तरीके से ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल इसकी मैं निंदा करूँगी कि सिद्धू के साथ जो भी हुआ वो गलत है और इसकी अच्छे से तफ्तीश चल भी रही है। काफ़ी इनकाउंटर में भी पीछे 2 लोगों को मारा गया है, मुझे पता है। तो बिल्कुल बखूबी जो उनके मर्डरर हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ डांसर नहीं, अभिनय में भी आपने हाथ डाला है। बिग बॉस में भी आपने पार्टिसिपेट किया था। बिग बॉस से कंपटीशन को बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। शहनाज ये सलमान भाई के साथ आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़्यादा अच्छी बात है कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और सबका अपना अपना लक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मैं क्या करूँगी वो मेरी जर्नी के ऊपर है, शहनाज क्या कर रही है वो उनकी जर्नी के ऊपर है। मैं धमाका नहीं कहूँगी कि कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मैं फ्लो में चलती हूँ, फ्लो में चलूँगी, फ्लो में ही चलती रहूँगी। म्यूज़िक का मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में नहीं है, म्यूज़िक का इंटरेस्ट मुझ में है। गाने का तो मुझे बचपन से ही शौक है। Now the whole team is there. कॉपीराइट का इशू है ना, गेट बंद करा रहा है। 2 मिनट हमारे लिए साउंड बहुत लाउड है ना। क्या कॉपीराइट का पंगा है, फाइट लेंगे ना। अरे दरवाजा बंद करो। म्यूजिक लॉन्च हुआ है, म्यूजिक लॉन्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल फिल्म का म्यूज़िक इस प्रकार का लॉन्च होना बहुत कम दिखा इन दिनों। पहले बहुत होता था, जब संजय जी और मैंने बहुत काम किए साथ में, तो पहले बहुत होता था म्यूज़िक लॉन्च, बड़ा पार्टी होती थी। और ये बहुत टाइम के बाद ऐसा लॉन्च म्यूज़िक का और उसके ट्रेलर का हम देख रहे हैं और बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में और म्यूज़िक का भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जब आप पिक्चर में म्यूज़िक देखेंगे। और हमने ये गाने कोविड के टाइम में बनाए जब दुनिया पूरी शांत थी। जब शांति होती है तब संगीत निकलता है और तब हमने अच्छी ट्यून बनाई। ललित साहब ने और मैंने, संजय छेल ने, मैंने गाने लिखे एक के बाद एक। हम सोचते गए, करते गए, इम्प्रोवाइज़ करते गए। और ये जो फिल्म है लव यू लोकतंत्र, उसके मिजाज को लेकर हमने पूरा ये म्यूज़िक बनाया है। तो ये गाने ऐसे नहीं किसी भी फिल्म में चल सकते हैं। बिल्कुल। ये बैंक में से बनाया हुआ गाना है, बैंक में से चुराया हुआ गाना नहीं है। ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट पे रखा हुआ गाना नहीं है। ये फ्रेश गाने हमने इस फिल्म के लिए, सिचुएशन के लिए बनाए और इसलिए ये गाने बहुत ताज़ा है सिचुएशन के साथ और म्यूजिक वाइज भी। इनफैक्ट हम इस गानों के लिए साथ में बैठते थे, साथ में खाते पीते थे और सोचते थे इसका कैसे करें। हाँ। और ट्यून बनाते बनाते इसकी जैमिंग सेशन होते हैं, बड़ी जैमिंग सेशन इसकी हुई। हाँ। और हम इम्प्रोवाइज करते करते गाना बनाते गए, इसलिए ये गाना बहुत ही महकते हुए गाने हैं, बहुत ही फ्रेश गाने हैं। और ललित और मेरा तो, जतिन ललित और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, खूबसूरत से लेकर यस बॉस से लेकर पटेल की पंजाबी शादी, बहुत सारी पिक्चर हमने की। तो ये फिल्म में भी हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मेरा गारंटी है। मैं, संजय छेल, ललित पंडित, हम गारंटी देते हैं कि म्यूजिक आपको सबसे अलग और सबसे फ्रेश लगेगा। थैंक यू सो मच। मेरा गाना कब लॉन्च होगा? 1 हफ्ते बाद। सर सेकंड में 2 हफ्ते बाद।
हाँ जी, कृष्णा अपने गाने के बारे में बताइए। अरे माइंड ब्लोइंग गाना, मुझे तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट, मैंने जितने गाने किए, लास्ट गाना किया था मैंने सनी लियोनी के साथ, लवली एक्सीडेंट, जो आप लोगों ने देखा है। तो मैं तो डांस करने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, हमारे शो में भी सबसे ज़्यादा मैं ही नाचता हूँ। तो आई थिंक हाँ बिल्कुल, हमेशा डांस करता रहता हूँ, बिकॉज आई लव डांसिंग, डांस मेरा पैशन है। तो मुझे जब गाना ऑफर हुआ और दिलेर पाजी का गाना था तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बहुत सारे गाने हम लोग, फिल्में आती रहती हैं, इसने गाना गाया, उसने गाया, दिलेर पाजी ने कभी मतलब मेरे लिए नहीं गाया था, तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। गाना भी बहुत पेपी नंबर था, तो मुझे था कि ये गाना मैं करूँगा। बाकी फिल्म का प्रोमो मैंने आज पहली बार देखा, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने स्टोरी सुनी थी लेकिन फुटेज नहीं देखी थी, आज फर्स्ट टाइम देखी। तो अच्छा अब काम किया है, फिल्म भी डिसेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मेरा गाना है। कृष्णा जी आप क्या कहना चाहेंगे? कृष्णा गाना जो आपने देखा था, मेरा पति आइटम बॉय बन गया है, ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। आप सबको अच्छा लगा ही होगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, वो जंप वगैरह सब करके। आई लव द सॉन्ग। वो किस स्टेप होना चाहिए? अरे बाप, हुक स्टेप कैमरे के लिए इस हुक गाने स्टेप? का। वो वाला था ना, मैंने बोला नाचना, ये उधर मुझे कहाँ याद है। अभी भी फॉलो कर रही हूँ। हाँ यार, बेस्ट पार्ट मुझे इस गाने का लगा कि भैया ने बहुत अलग हटके कुछ किया है। एक स्टाइल जो था ये मतलब अलग था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल था, और डांस के तो हम सभी फैन हैं इनके। और एक्चुअली सबसे अच्छा गाना ही लगा मुझे, प्रोड्यूसर तो नहीं देख रहा, नहीं सबसे अच्छा गाना ही था। कश्मीरा जी, कोई आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहे आप? नहीं, अभी आज का दिन इनका है, तो मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा वाला मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन आज हमारी एक फिल्म इनका आ रही दिन है है। जो जैसे मरने भी तो यार आई थी, ये कश्मीरा ने एक फिल्म डायरेक्ट की है बहुत जल्दी, उसकी भी प्रोमो लॉन्च हम करेंगे और धमाके के साथ, और एक्साइटमेंट। वो भी अलग टाइप, अलग कॉमेडी फिल्म है, उसमें श्रेयस है, तालपड़े है, मैं हूँ और कीकू हैं, कीकू शारदा जो हमारे शो पे आपको नज़र आते हैं। हम तीनों हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। कश्मीरा ने बहुत कमाल की फिल्म डायरेक्ट की है, उसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ आध बार न्यूज़ में आया था, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, उसके लिए एक्साइटेड हैं, बस 1-2 महीने में मिलेंगे जल्दी। तो टाइटल बता दो। आपसे एक सवाल है, अभी आपने आपका गाना देखा, बहुत एंजॉय किया, आपके डांस स्टेप्स देखे, बहुत एंजॉय किया, कॉमेडी देखते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं, लुक्स देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। कोई सीरियस सवाल आने वाला, बहुत अच्छे कैरेक्टर, लीड रोल नहीं मिल पाता आपको। देखो मैंने बोला सीरियस कुछ सवाल आएगा। अरे बाबा, नहीं, मैं देखो, हर आदमी की एक दौड़ होती है हमारी लाइन में, और मैं उस रेस में दौड़ रहा हूँ, मुझे उसकी ज़्यादा खुशी है। करते 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 कॉमेडी भी कर रहे हैं, गाने भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो हर आदमी का एक मोटिव यही होता है कि वो एक बड़ी फिल्म में एक लीड रोल करे, करेक्ट। मेरा भी वो क्या बोलते हैं ख्वाहिश है, और उस ख्वाहिश के लिए मैं 4 सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। तो अच्छा है कि और 4 सीढ़ी जल्दी चढ़ जाऊँगा, अगर आप लोगों का ऐसी गुडविल, गुड लक रहा तो। कॉमेडी करते वक्त ऐसा नहीं लग रहा, लोग आपको कॉमेडियन समझने लगते हैं, एज एन एक्टर सीरियस नहीं ले पा रहे, कॉमेडी आपकी इतनी ज्यादा है। आप प्रोड्यूस करो कुछ फिर। नहीं, लेकिन हम कॉमेडी करके, कॉमेडी से हटना पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो पता है कि डेफिनेटली कॉमेडी की छाप पड़ती है, और इससे अच्छी छाप कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमेडी सबसे टफ जॉनर है, किसी को हंसाना सबसे मुश्किल। और हम जो कॉमेडी करते हैं उसकी हमें छाप की कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बहुत पैसे मिलते हैं। लॉयर टू प्ले रोल ऑफ अ रियल लाइफ लॉयर, एक तो एक्ट करना है, वकील लोग थोड़ा बहुत एक्ट करती है इन द कोर्ट को, लेकिन यहाँ पे तो रियली एक बहुत अलग टाइप का एक्ट करना पड़ा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा था, एंड ऑल दोस थिंग्स वेयर हैपनिंग इन दिस मूवी, बट इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। और कोविड के टाइम पे डिस्टर्बेंस बहुत कम था, एंड वी रियली एंजॉयड वर्किंग विद द एंटायर क्रू। दिस क्रू हैज बीन रियली अमेजिंग। तो ये बताइए, मतलब ये एक्टिंग का और इस फिल्म के बारे में कैसे सोचा आपने? लव यू लोग का तो बहुत अच्छा टाइम। एक्चुअली हमने काफ़ी पहले से ही प्लानिंग की हुई थी वो फिल्म, लेकिन कुछ स्टोरी जच नहीं रही थी,
फिर संजय छेल ने हमको बताया कि आई कैन गिव वेरी डिफरेंट आइडिया ऑल टुगेदर। और आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हुए हैं, एक्चुअली यही स्टोरी हमने एक साल पहले लिखी हुई थी एंड टुडे इट टर्न इनटू रियलिटी, जो एक्चुअली जब घट रहा है बहुत सारे स्टेट में हो रहा है। बट दिस वॉज अ रियली अमेजिंग कोइंसिडेंस दैट ये पिक्चर हमने 1.5 साल पहले लिखी हुई थी और आज वो रिलीज हो रही है और उसी तरह की एक्चुअल सिचुएशन लाइफ सिचुएशन हो रही है। वो एक्टर्स के साथ काम करके कैसा लगा? पहली बार आपको मतलब फिल्म देखते थे उनके साथ काम किया आपने, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? I really had a very fantastic co-stars because सभी co-stars मेरे रेफरेंस वाले थे। ईशा कोप्पिकर जी, मनोज जोशी जी, स्नेहा उल्लाल जी, रवि किशन जी, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काफ़ी वक्त निकाला इसके लिए। स्नेहा उल्लाल इंस्टेड ऑफ उनकी हेल्थ इश्यूज रह के भी वो अक्सर सेट्स पे टाइम पे आती थी और अपना शूट खत्म करके चली जाती थी। राज टीवी जो प्रोड्यूसर है, संजय छेल, अभय निहालानी, प्रदीप भट्ट, ये सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और सबसे बढ़िया अगर मुझे एक्टिंग लेके तो अली असगर की, ही इज रियली प्लेड अ फैंटास्टिक रोल ऑफ अ स्टिंग ऑपरेटर जर्नलिस्ट, और अली ने बहुत अच्छा अपना एक योगदान दिया ये पिक्चर में। और कृष्णा ने बहुत डांस किया है। जब हम गाना शॉर्टलिस्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि एक आइटम सॉन्ग है जहाँ पे कुछ MLA लोग को रिसोर्ट में बंद किया गया है, तो उनको एंटरटेन करने के लिए हम सोच रहे थे कि क्या दिखाना चाहिए। तो हमको बहुत सारे स्टोरीज दिमाग में आ रहे थे, जैसे आपने देखा रहेगा अली बाबा 40 में खतुआ सॉन्ग था, तो हमारे दिमाग में कुछ स्टोरीज चल रही थी कि उस तरह का अपना सॉन्ग होना चाहिए। तब हमको ध्यान में आया कि सपना चौधरी जो नॉर्थ इंडिया में शी हैज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, तो हमने उनको कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक अपना सिचुएशन है और अपने सॉन्ग रहने वाला है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने येस कह दिया एंड शी टोल्ड मी आई विल साइन फॉर दिस। उनको हमने लिरिक्स सुनाया एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद द लिरिक्स एंड आई विल कम फॉर दिस सॉन्ग एंड गेट इट डन। तो कोविड टाइम में भी वो आके सॉन्ग करके चले। सर एक सवाल है सर, एक बार इट्स अ पॉलिटिकल सटायर कॉमेडी, यानी ऐसे बहुत सीरियस पिक्चर नहीं है, इट्स अ कॉमेडी मूवी, लेकिन विद द रियल लाइफ उसके अंदर कुछ मैसेज है और मैसेज बहुत क्लियर है एट द एंड ऑफ द मूवी। सर एक सवाल यहाँ से, देखिए जो आपने मूवी बनाया कि जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरह से खरीद फरोख्त करता है उस तरह से क्या आप बीजेपी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए कोई फिल्म बनाए? आप तो उसके अगेंस्ट में फिल्म बनाया कि ऐसे कुछ नहीं है। 1.5 साल पहले अगर स्टोरी लिखी है तो कहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का सवाल आता है इसके अंदर? ये तो 1.5 साल 2 साल पहले लिखी हुई स्टोरी है जो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। इट इज जस्ट अ कॉमेडी मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी। एक लॉयर होते हुए एक्टर की भूमिका निभाने का अनुभव कैसा रहा? ये पहली फिल्म होगी कि आगे भी आप फिल्म करना चाहेंगे? आगे तो हम शायद फिल्म करेंगे बिकॉज मुझे ऑलरेडी 2 पिक्चर्स पे ऑफर आए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बिकॉज रियल लाइफ लॉयर जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं डेट्स को लेके, मुझे ये मूवी में भी हमारे खुद के प्रोडक्शन होते हुए भी डेट्स करने के लिए मुझे खुद को भी एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ा। तो हम सैटरडे संडेज को करते थे, पब्लिक हॉलीडेज या बैंक हॉलीडेज के दिन हम लोग शूट्स करते थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ दैट 1 ईयर से अंदर कोविड का था सिचुएशन, तभी हमको बहुत अच्छा टाइम मिला और उसमें हमने कंप्लीट किया। बट डिफिकल्टी बहुत होती है रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन रियल लाइफ लॉयर। एक्चुअली 2016 में बोरा ब्रदर्स ने एक पिक्चर लिखी हुई थी, उनका नाम था अंग्रेज LLB, जो पिक्चर बनाई नहीं उन्होंने। तभी वो 2 पिक्चर बनाते हैं, अंग्रेज LLB, दूसरा था एक्स द प्राइम मिनिस्टर। तो तभी ये पिक्चर उनकी बनी जो एक्स द प्राइम मिनिस्टर उनकी प्रायोरिटी में उनकी बन गई, लेकिन तभी से उन्होंने मुझे बताया था आइडिया कि उनको दिमाग में चल रहा है स्टोरी वेयर ही वांट्स अ रियल लाइफ लॉयर टू वर्क इन द मूवी फॉर अ रियल लाइफ लॉयर। सर आशीष शिलर आए थे, जब ट्रेलर चला उसके बाद आशीष शिलर थोड़ा सा मतलब ऐसा नाराज हो गया, मतलब जब आप लोग बोल रहे थे तो क्या कहेंगे? जल्दी चले गए आशीष शिलर और आशीष जी बहुत डिफिकल्टी के यहाँ पे आए। मैंने आशीष को बहुत सारा रिक्वेस्ट की बिकॉज ही अनदर हैड मीटिंग एट 8 o'clock इन टाउन। अब यहाँ पे आए बैंड्रा से और वापिस टाउन में जाए तो ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 आवर का उन्होंने डिस्टेंस देखा था, पर मैंने उनको कि आप 20 मिनट का कैसे टाइम निकालिए, तो 20 मिनट नहीं 40-30 मिनट बैठ के चले गए। एंड आई वाज वेरी थैंकफुल कि इतना बिजी शेड्यूल में भी आगे मिलते। थैंक यू सो मच।